بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ڈکلیریشن پڑھ کر سنایا گیا ہے اس کی تائید اور توثیق کے ساتھ میں چند گزارشات پیش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ انشاءاللہ تعالی آج سے مساجد پر لاک ڈاؤن کا اطلاق نہیں ہوگا اور لاک ڈاؤن کی اصطلاح استعمال نہیں ہوگی، مساجد فنکشنل ہوں گی۔ ہاں، اس بات کی ہم نے عہد کیا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنس کا طبی مشورہ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا، اور مسجد میں 5 وقتہ نماز، جمعۃ المبارک، نماز تراویح، اعتکاف، تمام عبادات کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اس کے ساتھ میں پوری عالم انسانیت سے اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب پوری دنیا نے لاک ڈاؤن کے کرب کو، اس کی اذیت کو، اس کے آزار کو محسوس کیا، تو پھر جو 9 مہینے سے مقبوضہ کشمیر کے مسلمان مسلسل لاک ڈاؤن میں ہیں، مسلسل محصور ہیں، ان کی آزادی کے لیے سب کو آواز بلند کرنی چاہیے، اور ہم اس پر ہندوستان کی مکمل مذمت کرتے ہیں، اور ہم ان عالمی اداروں کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کو حقوق دلانے کے لیے، ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرو مگر اپنے زمینی حقائق کو بھی محسوس کرو، اس لیے کہ یومیہ مزدور کدھر جائے گا۔ اور کل ہماری تاجروں کے ساتھ میٹنگ تھی، انہوں نے کہا کہ جہاں لاک ڈاؤن ہے وہاں پر ہوٹلز کھلے ہیں، ٹیک اوے کھلے ہیں، آپ ہوٹل میں بیٹھنے تو نہ دیں، لیکن جس کے گھر میں کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہے تو اس کو کوئی ایسا ٹھکانہ تو ہو جہاں سے وہ کھانا خرید سکے۔ اس لیے حکومت کو آنکھیں اور کان کھولنے چاہیے، لوگوں کے مسائل کا اور دکھوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ اگر حکومت نہیں کرے گی تو پھر حکومت اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ UK کی حکومت نے اپنے پورے عوام سے کہا کہ آپ پرائیویٹ ملازم بھی ہیں تو 80% اسٹیٹ دے گی اور 20% ان کا ادارہ دے۔ تو میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ آپ 12,000 بھی دیں، آپ لوگوں کو راشن بھی پہنچائیں، لیکن دینی مدارس و مساجد کے جو یوٹیلیٹی بلز ہیں ان کو اس پورے سال کے لیے معاف کر دیا جائے، ورنہ 3 ماہ کے لیے مکمل طور پر معاف کر دیا جائے، کیونکہ مساجد بند کر دی آپ نے، مدارس بند کر دی آپ نے، تو پھر جو لوگ ان اداروں سے متعلق ہیں ان کی بقا کا انتظام کیا ہوگا؟ کیا وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو میں آج سب کے توسط سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام آباد کے اہل اقتدار تک اور یہاں کے اہل اقتدار تک پاکستان کے تمام مظلوموں کے دکھوں کو پہنچائیں، ان کی آواز کو پہنچائیں، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ پورے ملک کے مسلمانوں کو اور پورے ملک کے باشندوں کو اس مشکل اور مصیبت سے نجات دلائیں اور سب کی مدد کریں، سب کی کفالت کریں۔ اور ہم طویل عرصے تک لاک ڈاؤن کو افورڈ نہیں کر سکتے، وزیر اعظم بھی بارہا کہہ چکے ہیں، لہذا اگر ضروری ادارے ان کا کھولنا ضروری ہے تو پھر مساجد کا کھلنا اور مدارس کا کھلنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے، اور دینی ضرورت سب پر مقدم ہے، رہی ہے اور ہونی چاہیے۔ اب آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے 144 نافذ کر کے مساجد بند کرنے کا اعلان کیا، آپ لوگوں کو کیس بھی کی،
इस वक्त आप फैसला कर रहे हैं, तो सिंध हुकूमत को इस हवाले से आपने बताया है या एतमाद भी दिया है इस मामले पर? नंबर 2 कि सैनिटाइजर लगाना और दीगर चीज़ों का लगाना, बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं कि वहाँ पर अफोर्ड शायद नहीं किया जा सकता, तो क्या उसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार किया है? हमने देखा कि माजी में कोई इज्तिमा हुए, वहाँ से तकरीर न करे, सवाल करे। जी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस आए, अगर कोई ऐसे केस खुदा न खास्ता आते तो आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन होगा? पहली बात तो ये है कि हमने अहले सरवत से भी अपील की है और बहुत सी मस्जिदों को हमने देखा कि जहाँ सैनिटाइज़र गेट लग चुके हैं और लग रहे हैं। इसी तरह से मदारिस वाले अपने वसाइल के मुताबिक सैनिटाइज़र गेट पर रख रहे हैं। मदारिस से कालीनें उठा दी गई हैं, मदारिस की सफाई का अहतमाम हो रहा है। इससे पहले हम गवर्नमेंट के साथ मुकालमा कर चुके हैं और उसके बाद अब हम ये गवर्नमेंट को भी अपना पैगाम देना चाहते हैं कि मस्जिदों के खुला रहने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और जहाँ तक तदाबीर का ताल्लुक़ है, हिफाजती इक़दामात का ताल्लुक़ है, उसमें इंशाअल्लाह हम पूरा ताउन करेंगे, मसाजिद की इंतज़ामिया पूरा ताउन करेंगे। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि पुलिस ने बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं, बहुत से मसाजिद पर की हैं, हम उनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। अब भी एक इमाम हमारा जेल में है और हुक्मरान वादा एक करते हैं, अमल और होता है, तो हम उनको मुतनब्बे करते हैं कि उस इमाम को अव्वलीन वक्त में, अव्वलीन फुर्सत में आज़ाद कर दिया जाए। और इमाम का काम लोगों को मस्जिद से रोकना नहीं होता, इमाम का काम आने वालों को नमाज पढ़ाना होता है। इमाम अब भी नमाज पढ़ाएंगे, इंतज़ामिया अब भी मसाजिद को मैनेज करेगी और एहतियाती इक़दामात में भी ताउन करेगी, लेकिन सिक्योरिटी के इदारों को भी अदब सिखाया जाए कि मजहबी इदारों में जबर का मुजाहरा न करें। एक SHO ने तो गालियां दी, खिंजीर का बच्चा और कुत्ते का बच्चा, तो फिर ये मुआशरा ऐसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेगा। सवाल है कि ये बताइएगा कि मुफ्ती के इजलास हुए जिसमें आपने शिरकत की, आपने भी शदीद मुखालफत की कि मज़हब किस बात की मुखालफत की? किस बात की? मसाजिद बंद करनी। हाँ जी। एक सेकंड में एक बात, मुफ्ती साहब से पहले मैं आप तमाम मीडिया वालों से गिला करना चाहता हूँ। इशू तो सोशल कॉन्टेक्स्ट था ना, तो सोशल कॉन्टेक्स्ट के तो दसियों मज़ाहिर मुआशरे में मौजूद हैं, लेकिन 50 चैनल बैठ जाएं, मस्जिद, नमाज, जमात, जुमा, इसका मतलब है कि निशाना मस्जिद है, निशाना नमाज है, निशाना जुमा है, इससे नफ़रत पैदा होती है। इसलिए मैं मीडिया वालों से, हमारे भाई हैं, दीनी भाई हैं, इनसे गुजारिश करता हूं कि इस तरह का रवैया दीनी इदारों के बारे में इख्तियार नहीं करना चाहिए, इससे नफ़रत पैदा होगी और नफ़रत हमारे लिए अच्छी नहीं है। हमें मोहब्बत को फ़रोग़ देना चाहिए। आप सोशल कॉन्टेक्ट को एड्रेस करें, वो मस्जिद में हो, वो बाज़ार में हो, वो जहाँ चंदे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ आटे तकसीम हो रहे हैं वहाँ हो, जहाँ सुपर स्टोर हैं वहाँ हो, तो आप सबको यकसा ट्रीट करें। मस्जिद को आइंदा निशाना बनाकर हिट करना हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगा। एक साहब अगर आप जब आपने ये फैसला कर लिया तो साढ़े बोलने के बाद अब जबकि सिंध हुकूमत या सूबे हुकूमत इसको ना माने, सारी चीज़ों को प्रजाति को ना माने और उसकी जो पाबंद है, तो क्या तसादुम की तरफ नहीं जाना होगा? उसके लिए क्या एक तरतीब बनाई आपको? देखिए, मैंने अभी आपको सामने जो एलामिया पढ़ा है उसमें जितनी भी तजावीज़ हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि ये हमारा मुतालबा है और साथ ही एक हमने 12 रुकनी कमेटी बनाई है जो इसकी तनफीज़ और अमल दरामद के तरीक़ेकार का जायज़ा लेती रहेगी और उसके मुताबिक
वो आगे इसके ऊपर तनकीद और अमल दरामद होगा। लेकिन अगले दिन तो फैसला कुछ और हो गया था, तो आप आज की रोज़नामियाँ दे रहे हैं, क्या समझते हैं कि इसका अमल दरामद हो जाएगा आपके इस्लाम? देखिए, हम ये समझते हैं कि माकूलियत के साथ अगर हमारी तजावीज़ पर गौर किया जाएगा तो ज़रूर अमल दरामद होगा, और होगा ज़रूर इंशाअल्लाह। और मुफ्ती साहब, ये फैसला इतना बड़ा फैसला है कि इतने अरसे के बाद मसाजिद माशाल्लाह खुलेंगी, लोग आएंगे मसाजिद में। एक तो तरावी का क्लियर करते कि तरावी नमाज़ जमात को अदा होगी, दूसरा हुकूमत को आपने इस बात में लिया है, तीसरा सैनिटाइजर पर सवाल था कि इसमें अल्कोहल मिला होता है, तो वो गैर इस्लामी कोई चीज़ तो नहीं है। देखिए, वो जो अल्कोहल होता है वो सिंथेटिक होता है और वो नापाक नहीं होता, उसकी वजह से कोई नापाकी नहीं होती है। और जहाँ तक इसका तरावी का ताल्लुक़ है, जो हुक्म तरावी आम नमाज़ों का है वही तरावी का भी होगा, तरावी भी इंशाल्लाह होगी, लेकिन उन एहतियातों के साथ कि जो अभी हमने जिक्र की है, उन एहतियातों के साथ होगी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ये बताइएगा, अल्लामा साहब ने कहा कि आज से मसाजिद में और नमाज जमात होगी, तो आज इशा के बाद इशा में इंशाल्लाह जमात होगी। क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बाजमात नमाज होगी, बाजमात तरावी होगी, बाजमात जुमा होगा, सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा आप मस्जिद के खुले रहने के हक़ में वोट दें। अगरचे यहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि नो एंट्री फॉर कोरोना वायरस, सिर्फ मस्जिद में एंट्री है। आखिरी सवाल है, फिर हम इजाज़त चाहिए। आखिरी सवाल जी हज़रत। मेरा सवाल ये, यहाँ पर आपने सब के हवाले से वादे कर दिया है कि सब का फासला छोड़ा जाए। डॉक्टरों का कहना है कि 2 आदमियों के दरमियान कम से कम 3 फीट का फासला हो। ये आप लोगों के आपको मुनासिब का लफ्ज़ है, उसकी जगह मुनासिब पे ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल। देखिए, जो भी मुनासिब होगा तिब्बी एतबार से उसके मुताबिक अमल करें। बस आखिरी बात, बहुत बहुत शुक्रिया।